Bismillahirrahmanirrahim. This is a short revision course for class 8. Let's get started. The topic that will be covered will be how to resolve the algebraic expressions into its factors. That is factorization of algebraic expression. So let's start up. Now some basic algebraic identities are of now what are algebraic identities. When we are talking about algebraic identities, these are the algebraic equations which are true. Equations means that they will be having an equal sign, which are true for all values of variables in them. The algebraic equations which are true for all the values of variables in them are called as algebraic identities. algebraic इक्वेशंस algebraic आइडेंटिटीज वो वाली होती हैं जो जिसमें a प्लस बी की जगह a और b की जगह पे वी पुट एनी वैल्यू इट विल बी ट्रू फॉर बोथ द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। अगर हम वेरिएबल्स की जगह पे कोई भी नंबर ले लें तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगा राइट हैंड साइड के। So these are called as identities. Basically we have studied over here some the one we have studied is a plus b whole square is equal to a square plus 2ab plus b square. Then the same identity with the minus sign, a minus b whole square is equal to a square minus 2ab plus b square. Then a plus b, a minus b is equal to a square minus b square. Then a plus b whole cube is equal to a cube plus b cube plus 3ab into a minus b, a plus b, then a minus b whole cube. And then we have got the formula for a cube plus b cube, and then a cube minus b cube is equal to a minus b, a square plus ab plus b square. If these all identities are clear, then it is very easy for you to factorize. Now, what is an algebraic expression? Algebraic expression means an expression which consists of coefficient, which consists of variables, which consists of constants, and which consists of operations like plus, minus, multiply, divide. ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स भी हो, कांस्टेंट्स भी हो, कोफिशिएंट्स भी हो और वो कनेक्टेड हो प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई के साइन से, तो दैट इज कॉल्ड एज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. नाउ what is the meaning of factorization? Basically, factorization means finding out what to multiply to get an expression. आप किससे multiply करो ताकि आपके पास expression आ जाए. For example, if we have got 2y plus 6, so इसके factors क्या हैं? 2y plus 3. 2 आपने common लिया और y plus 3 आ गया. ये इसके फैक्टर्स हैं क्योंकि अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे वी विल गेट बैक दिस अगेन. यानी ऐसे फैक्टर्स जिससे हम ऐसे फैक्टर्स निकालना, ऐसे फैक्टर्स को ढूंढना जिससे हम मल्टीप्लाई करें वी गेट बैक द सेम, वी गेट बैक द एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एज फैक्टराइजेशन. फॉर एग्जाम्पल, let us take to another example. 6m plus 15. Over here also we can take 3 as common, then 3 2s are 6, and then m will come plus 3 5s are 15. So 6m plus 15 में what is common? 3. So basically this 3 into 2m plus 5 are the factors of 6m plus 15. क्योंकि अगर हम इसको multiply करें we will get back this term back. Same way, this was factorization by taking common. This method we have done it previously in previous classes. Now we are doing factorization by formula. Over here we will apply the formula a square minus b square is equal to a plus b, a minus b. जब भी दो टर्म्स हो, दोनों टर्म्स के ऊपर स्क्वायर लग रहा हो, सो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं a प्लस बी, a माइनस बी. दिस ऑल्सो वी हैव डन प्रीवियसली. नाउ over here we have got a cube, the third formula. We have done the formula for the cube also, which is a cube minus b cube is equal to a minus b, a square plus ab plus b square.
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास हो एक्सप्रेशन वाई क्यूब माइनस 125, तो क्या ये हम अप्लाई कर सकते हैं, फैक्टर्स फार्मूला आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं? यस, क्योंकि ये वाई क्यूब है वाई का, और 125 क्यूब है 5 का. सो वी कैन ईजिली अप्लाई दिस फार्मूला. फर्स्ट टर्म y है, सेकेंड टर्म 5 है. तो जहाँ फर्स्ट टर्म है वहाँ पे आपने y लिख दिया, y का स्क्वायर. 5 जहाँ b है वहाँ पे 5 लिख दिया. देन y माइनस 5, y का स्क्वायर प्लस y इंटू 5, 5y प्लस 5 का स्क्वायर, 5 5 सा 25. दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. Now coming to the questions, few questions we are going to review over here. The first one is 81a cube plus 3b cube. Now we know that कि 81 जो है, अगर हम इसके फैक्टर्स निकालें 81 के, तो यहाँ पास कितने आ रहे हैं, 3 की पावर 4. 3 की पावर 4 इंटू a3 प्लस 3b क्यूब. नाउ यहाँ भी 3 की पावर 4 है, यहाँ भी 3 है. सो 3 को हम कॉमन लेंगे. whenever we are factorizing, first we look for the common. सबसे पहले हम क्या देखते हैं, कॉमन. उसके बाद then we go for the formula. First we have to take for the common and then we go for the formula. So यहाँ 3 कॉमन लिया, 3 की पावर 3 a3 प्लस b3. अगेन 3a3 को हम लिख सकते हैं 3a पावर 3 प्लस b3. अप्लाई किया a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला, वी विल गेट दिस आंसर. देन अगेन वी विल चेक 8a प्लस b होल क्यूब प्लस c पावर क्यूब. नाउ अगेन वी कैन सी कि 8 जो है वो क्यूब है 2 का, 2 की पावर 3. देन a प्लस b होल क्यूब प्लस c की पावर क्यूब. नाउ दिस क्यूब को हम कॉमन ले सकते हैं, 2 इंटू ए प्लस बी पावर 3 प्लस सी पावर 3. We can multiply 2a into a 2a plus 2 into b 2b. 2a plus 2b power cube plus c की power cube. Now we know that हमारे पास फॉर्मूला क्या है, a cube plus b cube is equal to a plus b a square minus ab plus b square. हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया. a plus b, a की जगह पे दिस होल टर्म 2a plus 2b प्लस b की जगह पे c. देन a का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 2a प्लस 2b का स्क्वायर माइनस फर्स्ट टर्म 2a प्लस 2b. देन सेकेंड टर्म माइनस ए बी, फर्स्ट टर्म 2a प्लस 2b, देन सेकेंड टर्म प्लस b का स्क्वायर. फिर उसको ओपन किया एंड देन यू विल सॉल्व इट आउट. वी गेट दिस आंसर. नाउ पार्ट 3 इज 8a माइनस बी होल क्यूब माइनस 125. यहाँ भी देख सकते हैं कि यहाँ पे क्यूब है और 125 भी किसका क्यूब है, 5 का. और 8b जो है वो किसका क्यूब है, 2 का. तो 2 की पावर, तो यहाँ भी ये क्यूब बन रहा है 2 पावर 3 a माइनस बी होल 3 माइनस 5 की पावर 3. सो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a minus b into a square plus ab plus b square. Then we will apply this 2a minus b power cube minus 5 power 3. 2 into a 2a minus 2 into b 2b power cube minus 5 power 3. Then apply this formula, a cube minus b cube का formula apply किया, we will get this answer. Next, fourth one, 216 a3 minus 729 b3. अगेन जब हम 216 के फैक्टर्स निकालेंगे, we get 2 power 3 into 3 power 3 into a3. सेम वे में आपने 729 के फैक्टर्स निकाले, हमारे पास क्या आया, 3 power 3 into 3 power 3 b3. पावर्स ऑफ 3 में इसलिए लिखा है क्योंकि हमें क्यूब, वी विल चेक कि क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है कि नहीं हो सकता. बट बिफोर दैट फर्स्ट यू विल चेक फॉर कॉमन. यहाँ पे कॉमन 3 की पावर 3 है, आपने 3 की पावर 3 को कॉमन लिया. 2 पावर 3 a3 माइनस 3 पावर 3 b3. अब 2a, इसको इनसाइड द ब्रैकेट पावर 3 माइनस 3b पावर 3.
नाउ सेम वे में ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई किया और 3 की पावर 3 मीन्स 27. We will apply the formula and simplify it. You will get this answer. Next is x12 minus y12. यहाँ x12 minus y12 को हम x6 पावर स्क्वायर माइनस y6 पावर स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं. Now x6 plus y6, x6 minus y6, then x6 plus y6 को x square पावर 3 plus y square पावर 3. जब ये 6 में हो इस बेटे क्या माइनस के साथ यहाँ x क्यूब पावर 2 लें माइनस वाई क्यूब पावर स्क्वायर लें. इट विल सिंप्लीफाई इट. यानी बजाय आप x स्क्वायर पावर 3 के इट इज़ ईजियर टू अप्लाई द स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करें. दिस विल बी मोर ईजियर. सो यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई किया. ए क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर. देन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया. इस फॉर्मूले को आपने ओपन किया. सेम वे में एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला लगाया. यू विल गेट दिस होल आंसर. देन पार्ट 6 इज एम क्यूब माइनस plus n cube plus m into m square minus n into m plus n whole square. Again a cube plus b cube किसके इक्वल है a plus b a square minus ab plus b square. सेम वे में a square minus b square का फॉर्मूला है. यहाँ m cube plus n cube की जगह पे हमने फॉर्मूला लिख दिया. m a square minus b square का फॉर्मूला अप्लाई किया माइनस n अब m plus n के ऊपर होल स्क्वायर है. इट मीन्स कि m प्लस n इंटू एम प्लस वन. जिस तरह 2 के ऊपर स्क्वायर होता है इट मीन्स 2 इंटू 2. सेम में m प्लस n के ऊपर होल स्क्वायर इट मीन्स m प्लस n इंटू एम प्लस n. देन यू विल टेक कॉमन m प्लस n. आपने m प्लस n को कॉमन लिया. यू विल गेट दीज टर्म्स इनसाइड क्योंकि यहाँ पे m प्लस n m प्लस n m प्लस वन ये सब कॉमन आ गया. दिस ऑल विल बी लेफ्ट. फिर आपने सिंप्लीफाई किया. यू विल गेट द आंसर एज m प्लस n into 2m square minus 3mn. Next is part 7 x6 minus y6. Now this can also be done in two ways. यहाँ पे हम मेथड अप्लाई कर रहे हैं. फर्स्ट मेथड में हमें x स्क्वायर पावर 3 यहाँ फर्स्ट मेथड में हमने क्यूबिक ही फॉर्म में लिया x स्क्वायर पावर 3 माइनस वाई स्क्वायर पावर 3. अब अप्लाई किया फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला उसे ओपन किया. उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इट मीन्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी एंड देन x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस y4. नाउ यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसको सिंप्लीफाई ये मज़ीद हो सकता है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हमें a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. यहाँ हो कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को ऐड और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि हमारे पास ये वाली टर्म a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिख सकें. तो एक चीज़ आपने ऐड की तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर. अब ये टर्म होल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई का स्क्वायर. फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आपने फॉर्मूला अप्लाई किया. यू विल गेट दिस एज आंसर. नेक्स्ट इस मेथड 2 जहाँ पे आपने सिंपल ए स्क्वायर यानी एक्स क्यूब का स्क्वायर माइनस वाई क्यूब का स्क्वायर लिया. यहाँ स्क्वायर के आपने फॉर्मूला डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया दैट इज़ दिस वन. तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब. फिर सिंपली आपने फार्मूला को पुट किया एक एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब वाला फार्मूला एंड एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब वाला फार्मूला. सो यू विल गेट दिस एज आंसर. नेक्स्ट so this was a revision timeline. Course pack was there, recorded session was there, and there's some video resource for you. Thanks for watching. Thank you.